Hello students, addition of the two vectors and these two vectors are acting in the different directions. Say for example this is the object and the two vectors are acting in this way. What will be the resultant that we are going to discuss? So there are three laws, mainly three laws. Law number one, law of vector addition. Law number two, parallelogram law of vector addition, and law number three, polygon law of vector addition. So law of two vectors addition, laws of addition of the two vectors. What is that? Addition of the two vectors pointing in different directions. Here the one object is there and the different directions are there of the vectors. Then we are going to find out its resultant. So there are three main laws: triangle law of vector addition, parallelogram law of vector addition, and polygon law of vector addition. First one we are going to discuss, that is the triangle law of vector addition. So statement, first of all, statement is, if the two vectors are represented, try to understand, if the two vectors are represented by the both in direction and magnitude of the two sides of a triangle, then a triangle taken in the same order, then the resultant of these vectors is represented by both in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order. What does that mean? Say for example the two vectors are there, vector A and vector B. These two vectors are there. So first of all, if I am going to just join it, so how we are going to join it? This way, tail, head, and another vector. This is a vector B and another vector A. This. Always we have to add head to tail in this manner. These two vectors. B को यहाँ रखे, A को उसी direction में. Then the resultant of these two vectors is represented by the third side taken in the opposite order. That is the resultant. So resultant of these two vectors is the vector A plus vector B. That is the representation of the triangle law of vector addition. Now the resultant we are going to find out. Now the triangle law continues. Say for example the two vectors, vector A represented by OP and vector PQ represented by vector B. And these two are taken in the same order, and the resultant is in the opposite order. So R is the resultant. Now its magnitude we are going to find out. So what is the value of the resultant, that we are going to find out. First of all, extend this particular OP को क्या किया हम लोग, बढ़ा दिए और Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर. Let this particular point is your D. The angle between these two vectors is taken as theta, and the resultant and a particular vector A is, say, that is your alpha, that indicates the direction of the resultant. तो हमको करना क्या है, R का वैल्यू निकालना और ये अल्फा का वैल्यू, दोनों का. तो हम क्या देख रहे हैं, तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ODQ में, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर. OQ क्या है, R है, तो R स्क्वायर. OD, in place of OD we are going to write the OP plus PD whole square plus DQ स्क्वायर. अब यहाँ पर देखिए कि OP का वैल्यू हमको मालूम है A प्लस PD का वैल्यू हमको निकालना होगा, हमको नहीं मालूम है, प्लस DQ कितना है, DQ हमको नहीं मालूम है, ये भी हमको निकालना होगा, DQ स्क्वायर. Say this is the equation number 1. Now our purpose is to find the value of this PD and DQ.
सो फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्राइंगल अनदर स्मॉलर राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल? पी डी क्यू राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, हमको यहाँ पर पहला क्या है, पी डी निकालना है। पी डी ये बेस है और हमको ये मालूम है, हाइपोटेन्यूज मालूम है बी। तो बेस बी और एच के बीच क्या रिलेशन होता है? साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा। बेस और इसके बीच में क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अगर हम लोग निकालते हैं, बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है, बेस हो गया पी डी, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? बी। तो पी डी का वैल्यू कितना आ गया मेरा? बी कॉस थीटा। ये पी डी का वैल्यू निकाल दिया। सिमिलरली इन द सेम राइट एंगल ट्राइंगल, अगर हम लोग ये पी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच का रिलेशन निकालेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर क्यू डी हमको मालूम करना है। सो साइन थीटा अगर हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज अ पी बाई एच, तो क्यू डी बाई बी। तो क्यू डी कितना आ गया आपका? क्यू डी या डी क्यू बी साइन थीटा। तो ये एक वैल्यू आया पी डी, ये एक वैल्यू आया क्यू डी। ये दोनों का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? 1 में पुट कर देंगे। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस पी डी। पी डी का वैल्यू आया था बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस डी क्यू या क्यू डी, इसका वैल्यू डी क्यू स्क्वायर और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a इंटू बी माने बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका और इसका क्या हो गया? बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आर का वैल्यू आया इतना अंडर रूट। ये इसका मेन इक्वेशन रिजल्टेंट, दैट इज द रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। अब हम लोग को ये डायरेक्शन, जो रिजल्टेंट वेक्टर ए से कितना एंगल बना रहा है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर फॉर द डायरेक्शन, फॉर टू फाइंड द डायरेक्शन, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? ये राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग को दिखाई दे रहा है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में अल्फा निकालना है, जिसमें हमको ये मालूम है और ये मालूम है, मीन्स ओ डी मालूम है और डी क्यू मालूम है। तो हम लोग tan का यूज़ करेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू पी बाई बी होता है क्यू डी बाई ओ डी। तो मेरा यहाँ पर इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। क्यू डी का वैल्यू अभी मेरे बताया था बी साइन थीटा, तो यहाँ लिख देंगे बी साइन थीटा बाई ओ डी। ओ डी का वैल्यू कितना था? ओ डी का वैल्यू ए प्लस पी डी। पी डी का वैल्यू आया था बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। तो कोई पूछेगा अल्फा का वैल्यू कितना हुआ? tan इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये इतना एंगल से रिजल्टेंट, इतना एंगल किस से? वेक्टर ए से, इतना एंगल से रिजल्टेंट मिला है मेरा। दैट इज योर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकेंड वन is again a very important, the parallelogram law of vector addition. Statement: if two vectors are represented both in magnitude and direction by the adjacent side of the parallelogram drawn from a point, then the resultant vector is represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through the same point. जैसे दो वेक्टर हैं, यहाँ पर भी ये भी ट्रायंगल लॉ जैसा है। ये वेक्टर ए है और मान लेते हैं ये वाला वेक्टर बी है। पहले हम लोग ट्रायंगल लेके किए थे,
अब ये दोनों को अगर हम किसी एक पैरेललोग्राम में सेट कर दें, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये उठा के ऐसे कर दिए और ये वाले को ऐसे कर दिए, मतलब ऐसे इसको एडिशन किया, तो अगर ये दोनों साइड दो एडजेसेंट साइड हो गया किसका, पैरेललोग्राम का, ये वेक्टर बी, तो इसको अगर हम एक पैरेललोग्राम बना, इसके पैरेलल एक और लाइन खींच देते हैं ऐसे, ये पैरेललोग्राम बना और इसके पैरेलल एक और ऐसे करके खींच दिया, तो ये वाला ऐसे बना, ये ऐसे बना। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट रिजल्टेंट क्या होगा, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, यहाँ से ये जो इसका डायगोनल होगा, दिस डायगोनल इज द रिजल्टेंट, this diagonal is the resultant. This is the, so this is the vector A and this is the vector B. ये एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम बना दिए, इसका रिजल्टेंट जो है, ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ये होगा डायगोनल एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। अब इसका रिजल्टेंट का वैल्यू निकालेंगे, अगेन द सेम थिंग, इसको एक्सटेंड कर दिए, इसको फिर ऐसे पैरेललोग्राम ड्रॉप किए परपेंडिकुलर, तो ये इसका नाम हम लोग मान लो और डी दे दिया। ये दोनों वेक्टर जो है, वेक्टर ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच का जो एंगल है दैट इज योर थीटा, मीन्स ये वाला एंगल भी थीटा है, ये थीटा है, ये भी थीटा है, एडजेसेंट एंगल्स। अब यहाँ पर या करस्पॉन्डिंग एंगल, तो यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू निकालना है, यहाँ पर भी वही इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ओ डी क्यू, ओ डी क्यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर। फिर वैसे सेम प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे, ओ डी कितना है, ए प्लस पी डी स्क्वायर प्लस डी क्यू कितना है, ये को निकालना है, डी क्यू स्क्वायर ओ क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर जैसा लास्ट टाइम निकाले थे बिल्कुल सेम हम लोग को यहाँ पर आया, तो यहाँ पर कौन सा राइट एंगल छोटा ट्रायंगल लेंगे, पी डी क्यू, यहाँ पर हम लोग का क्या क्या निकालना है, पी डी निकालना है। तो यहाँ पर ये बेस बाई हाइपोटेन्यूज लिए थे, तो कितना आया था, बी कॉस थीटा, और क्यू डी निकाले थे, एकदम सेम प्रोसेस, क्यू डी निकाले थे तो क्या आया था, बी साइन थीटा, ये आया था, क्यू डी कितना आया था, बी साइन थीटा। तो यहाँ पर अगर इसका वैल्यू पुट कर दिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस पी डी का वैल्यू बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस डी क्यू का वैल्यू आ गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर वही सेम, तो आर इज इक्वल टू हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर में, फिर कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का टर्म रहेगा तो 1 हो गया, तो अल्टीमेटली कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दैट इज द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट में हम लोग क्या देख रहे हैं, रिजल्टेंट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग, इतना रिजल्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड इतना है। अब मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का इतना है, तो एंगल के लिए ये एंगल मान लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर ए से या एक्स एक्सिस से कुछ एक एंगल बना रहा है अल्फ़ा, तो यहाँ पर भी वैसे ही tan अल्फ़ा कितना हो जाएगा, tan अल्फ़ा किस राइट एंगल ट्रायंगल ओ डी क्यू में, tan अल्फ़ा पी बाई बी मीन्स क्यू डी बाई ओ डी, क्यू डी अभी हम मेरा उसका वैल्यू आया था बी साइन थीटा बाई ओ डी कितना है, ओ डी ए प्लस पी डी कितना था, बी कॉस थीटा। तो अल्टीमेटली अल्फ़ा यही एंगल हमको निकालना था
दैट इज योर tan इनवर्स ऑफ b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। यही एंगल निकालना था। अब न्यूमेरिकल कुछ भी रहेगा, कोई कितना एंगल है क्या है, हम सब उसका एंगल का वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं। थर्ड वन इज द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर दो से ज़्यादा वेक्टर हैं तब ये एप्लीकेबल होता है। इफ द स्टेटमेंट क्या बोलता है, इफ द नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ द पॉलीगन taken in the same order, then the resultant vector is represented both in magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in opposite order. That's interesting. अब इसको समझिए। मान लीजिए ये फर्स्ट वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर ये दिया हुआ है, तीसरा वेक्टर वेक्टर सी ऐसा दिया है, चौथा वेक्टर वेक्टर डी दिया है ऐसा। ये सबको, ये चारों वेक्टर को हमको ऐड करना है। तो हम लोग ऐड कैसे करते हैं, टेल टू हेड, फिर हेड टू टेल, इस तरह से हम लोग। अब इसको हम लोग सब अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, ऐसे। इसको देखिएगा कैसे हम लोग अरेंज कर रहे हैं। ये आ गया फर्स्ट वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी का इंक्लाइंड है, उसी हिसाब से हम लोग इसके साथ इसको वही डायरेक्शन कोशिश करेंगे। दैट द वेक्टर बी। सी ऐसे है तो सी ऐसे कर दिए, वेक्टर सी। और डी कैसा है, डी ऐसा, ये वेक्टर डी। ये पॉलीगन का ये ओपन साइड हो गया। अब क्लोजिंग साइड क्या होगा, ये और ये, दैट इज द क्लोजिंग साइड। आप क्लोजिंग साइड को इसको ऐड कर दें, इसको कनेक्ट कर दें, ज्वाइन कर देते हैं, तो इसका क्लोजिंग साइड का ऑर्डर डिफरेंट होगा, मीन्स अपोजिट ऑर्डर। तो ये देखिए सेम ऑर्डर से जा रहा, ये हो गया इसका रिजल्टेंट, ये इसका रिजल्टेंट होगा। तो इसको हम निकालेंगे कैसे, जैसे यहाँ पर हम लोग ऐसे करके पहले हम ये पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, फिर इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे और ट्रायंगल लॉ का यूज़ करेंगे। इसका हम लोग कुछ नाम दे देंगे। ओ मान लेते हैं पी क्यू, ज्वाइनिंग पॉइंट को नाम दिए हैं पी क्यू, ओ पी क्यू आर, आर तो यहाँ पर है, फिर एस दे देते हैं, एस, ये हो गया टी। आर रिजल्टेंट है इसलिए आर नहीं लिया। अब देखिए यहाँ पर ओ पी क्यू में, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करेंगे। तो रिजल्टेंट का ये डायरेक्शन, अभी बाकी सब भूल जाइए, केवल यही सिर्फ याद रखिए। तो ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ पी प्लस पी क्यू। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ओ क्यू इज इक्वल टू, ओ पी है वेक्टर ए और पी क्यू है वेक्टर बी। इसको दे दिया नंबर 1। सिमिलरली अब हम लोग ये वाला वेक्टर, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ओ क्यू एस, ये रिजल्टेंट है इसका, ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों का। तो ओ क्यू एस में क्या हो जाएगा, तो रिजल्टेंट ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू एस, फिर ट्रायंगल लॉ, ओ क्यू प्लस क्यू एस, सब वेक्टर है। तो ओ क्यू में ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू, ओ क्यू कितना आया था, ओ क्यू अभी आया था ए प्लस बी, वेक्टर ए वेक्टर प्लस वेक्टर बी, और क्यू एस कितना था मेरा सी, ये आ गया नंबर 2। उसके बाद अब ये थर्ड साइड देखेंगे, ये हमको मालूम, ये हमको मिल गया, थर्ड साइड ये है। अब इन ट्रायंगल ये हो गया, ये हो गया। अब इस ट्रायंगल में ओ एस टी, इस ट्रायंगल में रिजल्टेंट, फाइनल रिजल्टेंट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, मीन्स ओ एस प्लस एस टी। ओ एस का वैल्यू अभी आया मेरा, कितना आया,
ए प्लस बी प्लस सी इतना आया था, और एस टी में मेरा कितना है, डी प्लस डी, ये आ गया फाइनल रिजल्टेंट, क्लोजिंग साइड का रिजल्टेंट। ऐसे हम लोग निकालना है, इसका डायरेक्शन निकालना है या इसका वैल्यू निकालना रिजल्टेंट का, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एक ट्रेडिशन का अलग अलग पॉइंट पर हम लोग निकालेंगे। क्या एंगल है, जहाँ हम लोग को मालूम है रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो मालूम ही है और एंगल का ही मालूम है। ये क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर मान लेते हैं ए है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट, ठीक है, और इसी हिसाब से हम लोग एंगल निकालेंगे, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 laws several important questions are also there. If you are going to apply this concept, you can easily solve. Okay, thank you.